So that was set 1. Let us move towards set number 2. So once again, I will get out of the screen. I want you to take about 4 minutes to understand and read this data. Read and understand 4 minutes, not more than that. Because यहाँ पर again questions नहीं है. Questions will have a separate situation. So I want you to spend 4 minutes. Pause the video, read and understand, make notes, and then resume after you are done. All right, so I hope by now you are done reading this data and you have made your notes, right? Okay, the simple look of the question, it talks about some timings, right? So it might be some minimization or maximization problem. That was set 2. Chalo, let me take you to the questions. I hope you are ready. Question 1. How many cars would be asked to take the route A and B, that is Akala, Nanur and Bakala route by the police department? It's a TITA question. I want you to have 3 minutes. Okay, this is a moderate level question, not easy, not very difficult, but this is a moderate level question. I want you to take 3 minutes, create your solution table, solution chart, whatever you want to do, but take 3 minutes, pause the video, try to solve and resume after you are done. Okay, I hope by now you have marked your answer. I mean, you have written your answer in notepad and then you will verify when we solve it together. That was question 1. Let me take you to question 2. If all the cars follow the police order, what is the difference in travel time between a car which takes the route A and B and a car that takes the route A and B? Right? So again, if you have solved question 1, this should take about 30 to 45 seconds, not more than that at all. Okay? So अगर आपने question 1 कर लिया है, I would want to give you about 1 minute. But अगर question 1 नहीं किया है, so please go back, try question 1 and then come to question 2, because question 2 is completely dependent on question 1. Right? This is just a follow-up question, a very simple question. So take 1 minute, pause for 1 minute, mark your answer. I mean, choose any one of the options, 1, 0.1, 0.2, 0.9, and then resume after you are done. Alright, so I hope by now you are done with question 2 as well. Let me take you to question 3. Okay, it looks bigger, right? And of course, if a question looks bigger, it has a scary effect, right? So let's try to understand. A new one-way road is built from M to N. Each car now has 3 possible routes to travel from A to B, that is AMB, ANB and AMNB. On the road from M to N, one car takes 7 minutes and each additional car increases the travel time per car by 1 minute. Assume that any car taking the AMNB route travels the AM portion at the same time as other cars taking AMB route and the NB portion at the same time as other cars taking ANB route. How many cars would the police department order to take the AMNB route so that it is not possible for any car to reduce its travel time by not following the order while the other cars follow the order? Assume that police department would never order all the cars to take the same route. And it's a TITA question. I would want to give you about 5 minutes. I want to give you about 5 minutes to try this question on your own. Create some cases. Take 5 minutes. So pause the video for 5 minutes. Try to solve this question on your own and resume after you are done. Alright, so I hope by now you have noted your answer because it's a TITA question. I hope you have noted your answer in the notepad. We will verify it when we solve it together, right? But this is, of course, this is moderate to difficult. Look at the length of the question. It requires some level of understanding, right? Question 3 is this. Let me take you to question 4. The first part looks the same, correct? A and B route, MN, yes, okay. If all the cars follow the police order, what is the minimum travel time from A to B? Assume that police department would never order all the cars to take the same route. So they are just asking for minimum time, minimum travel time, that's it.
Your options are 26, 32, 29.9 and 30. So once again, I would want to give you about 1 minute if you have solved the previous question, and if you have not solved the previous question, please go back, give it another try, and after that come back to this question, take 1 minute and solve. Pause the video for 1 minute and resume after you are done. Okay, so I hope you have marked your answer, and yes, this is not an easy question. It is moderate to difficult, right? I will not give a comment that it is more inclining towards moderate or difficult. This is moderate to difficult. So at some point in time, you will feel this is very difficult, and in some questions you will see that yes, this was moderate. Okay. So for example, the follow-up questions were quite moderate because they were so easy. If you are successful in attempting at least one difficult question, you will end up scoring the marks for 2 questions. So that is the scenario in this question. Chalo, let's try to solve this question together. एक साथ करने की कोशिश करते हैं. Right. What is the data? 4 cars need to travel from Akala to Bakala, A to B बोलते हैं उसको, A to B. 2 routes are available, one via M and the other via N. The roads from A to M and from N to B are both short and narrow. So we have got to try and draw some path. It looks like we have to draw some path, right? Okay, so let's try. We've got 2 cities, A to B, and we've got 2 routes, M to N. Okay, so let me try and draw here. Let's say A is here, okay, and let's say B is here. This is M, and this is N. Okay, so आप A से M जा सकते हो, M से B जा सकते हो, A से N जा सकते हो, and N से B जा सकते हो. ठीक है? These are the 2 routes. पहला रूट है A M B, दूसरा रूट है A N B. Okay, what else is given? Yeah, the roads from A to M and from N to B are both short and narrow. Okay, ठीक है, fine. We will see whether it will be useful. In each case, one car takes 6 minutes to cover the distance, and each additional car increases the travel time per car by 3 minutes because of congestion. So they are talking about AM and NB. जो AM वाला रूट है और जो NB वाला रूट है, each रूट पे एक गाड़ी को लगेगा 6 minutes, and each additional car increases the travel time per car by 3 minutes. Please understand. Let's say this is the road. मैं समझ में कि अगर एक गाड़ी होगी तो उसको 6 minutes लगेगा, बट द मोमेंट 2 गाड़ी आ जाएगी, let's say this is car 1, this is car 2, 6 plus 3 9 minutes लगेगा दोनों को. अगर 3 गाड़ी आ गई तो 6 plus 3 plus 3 12 minutes लगेगा तीनों को. I hope you have understood how this works. और ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ कोर्स एक गाड़ी छोटे रोड पे आ गई तो कंजेशन बढ़ गया ना, आप ज्यादा स्पीड से नहीं चला पाओगे. So this is what they mean. Okay, this is what they mean. इसको टेबल में डालते हैं, अपने सोल्यूशन में डालते हैं. क्या बोल रहे हैं वो लोग? AM and NB 6 लगता है टाइम और एडिशनल लगेगा 3. AM NB. Okay, so AM 6 minutes, NB 6 minutes, प्लस कितना होगा? प्लस 3 मिनट एडिशनल पर कार. यहां पर भी प्लस 3 मिनट एडिशनल पर कार. अगर एक कार ऐड हुई मतलब टोटल 2 कार हो गई तो 6 plus 3 9 मिनट्स लगेगा इसको. ओके, व्हाट एल्स? फॉर एग्जांपल, इफ ओनली 2 cars ड्राइव फ्रॉम A to M, ईच कार टेक्स 9 मिनट्स. देखिए यही सेम अंडरस्टैंडिंग दिया हुआ है. ओके, ऑन द रोड फ्रॉम AN, one car takes 20 minutes and each additional car increases the travel time per car by 1 minute. देखिए AN 20 मिनट प्लस 1 मिनट. AN मतलब ये, so 20 minutes प्लस 1 मिनट, 20 minutes प्लस 1 है ना. अब एक MB बचा हुआ है, उसका क्या डेटा है? देखिए ऑन द रोड फ्रॉम MB, ये रहा दिया हुआ है, one car takes 20 minutes and each additional car increases travel time per car by 0.9 minutes. 0.9, what a weird number. So 20 minutes plus 0.9 लिख देते हैं यहां पर.
So this is our map. This is our map, है ना? Okay, चलिए let's read. The police department orders each car to take a particular route in such a manner that it is not possible for any car to reduce its travel time by not following the order while the other cars are following the order. Okay, very complicated statement. very complicated statement. क्या बोल रहे हैं वो ऐसा बोल रहे हैं कि लेट्स से ये एक रूट है और ये एक रूट है. लेट्स से एक गाड़ी यहाँ जा रही है और एक गाड़ी यहाँ जा रही है. मान लो ये ऑर्डर फॉलो कर रही है, यस, और ये ऑर्डर फॉलो नहीं कर रही है लेट्स से. सो इसने डिसाइड किया मुझे ऑर्डर फॉलो नहीं करना है, वो ये रूट छोड़ के वो इस रूट पे आ जाती है, थिंकिंग कि इस रूट पे जाऊंगी तो मेरा ट्रैवल टाइम रिड्यूस हो जाएगा. बट देन अगर ये गाड़ी यहाँ आ जाती है तो यहाँ पर दो गाड़ी हो जाएगी ना, सो यहाँ पर भी ट्रैवल टाइम बढ़ जाएगा. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट. ऑप्टिमल सोल्यूशन जहां पर गाड़ियों का ऑर्डर चेंज करके या फिर ऑर्डर फॉलो ना करके सबका टाइम रिड्यूस होना पॉसिबल ना हो. ओके, दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड, ऑप्टिमल सोल्यूशन. ओके, सो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, यस, बट आई थिंक अगर हमने ये मैप ड्रॉ कर लिया है तो शायद हम थोड़ा सोच पाएंगे. सो लेट्स गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी कार्स वुड बी आस्क्ड टू टेक द रूट ए एंड बी, A and B, that is A and B Akala, Nanur, Bakala route by the police department. Okay. टोटल कितनी कार्स हैं? देखिए 4 कार्स हैं, ये मत भूलना, स्टार्टिंग में ही है 4 कार्स नीड टू ट्रैवल. 4 कार्स, 4 गाड़ियां हैं, है ना, 4 गाड़ियां हैं. ओके, अब आते हैं अपने इस मैप पे. 4 गाड़ियों को यहां से यहां जाना है, 4 गाड़ियों को, राइट. पूछा क्या है? हाउ मेनी कार्स वुड बी आस्क्ड टू टेक द रूट ए एंड बी, दैट इज अकाला, नानूर, बकाला बाय द पुलिस डिपार्टमेंट. पुलिस डिपार्टमेंट का कंडीशन क्या है कि भाई पुलिस डिपार्टमेंट का कंडीशन है कि ऑप्टिमल टाइम लगना चाहिए सबको. ऑप्टिमल टाइम, ऑप्टिमल टाइम कैसे कि मान लो मुझे टाइम लगा x मिनट्स, अगर मेरे लिए ये पॉसिबल है कि मैं मेरा रूट छोड़ के किसी और के रूट पे जाऊं और टाइम कम हो जाए, तो वो ऑप्टिमल नहीं है. ऑप्टिमल क्या बोलता है कि मान लो मेरा टाइम है x मिनट्स और मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि मैं अपना रूट छोड़ के किसी और के रूट में जाऊं और टाइम कम हो जाए. दैट्स नॉट पॉसिबल, विच इज कॉल्ड ऑप्टिमल सोल्यूशन. ओके, सो पुलिस डिपार्टमेंट का ये मानना है कि ऑप्टिमल टाइम सबको लगना चाहिए. ओके, ऑप्टिमल टाइम सबको लगना चाहिए. अब देखिए डेटा में देखिए, ए से बी जाना है, 4 गाड़ियां हैं, 4 कार्स. ए से बी जाना है और 4 गाड़ियां हैं, 4 कार्स हैं अपने पास, है ना. रूट 2 है, AMB एंड ANB. Okay, what are the possibilities, right? What are the possibilities? Okay, so चलिए possibilities क्वेश्चन पे आते हैं. So let's say ये अपना रूट है AMB, ये रूट है ANB. AMB, ठीक है. ये है टाइम और ये है कार्स. यहां पर भी स्टार्टिंग में मैं AMB लिख रहा हूं और फिर ANB लिख रहा हूं. चलिए अब इधर आइए, क्या पुलिस डिपार्टमेंट ऐसा सोचेगा कि काम करते हैं एक पूरा रूट यूज ही ना करें, एक पूरा रूट यूज ही ना करें. दैट इज AMB को आप दे दो 0 कार्स और ANB को 4 की 4 गाड़ियां दे दो. मतलब ये रोड ही बंद कर दो, सारी गाड़ियां यहां से जाने दो. Will it be an optimal solution? Think about it. अगर एक रोड ही यूज नहीं कर रहा हूं मैं और सारी गाड़ियों को यहां से भेज रहा हूं, तो आप देख पाओगे कि गाड़ियों को यहां पर भेजने का क्या होगा, कंजेशन बहुत बढ़ जाएगा. अगर 4 गाड़ी है तो यहां पर 6 में आप 3 कितनी बार ऐड करना पड़ेगा आपको? 3 बार. सो यहां पर हर एक गाड़ी का टाइम कितना हो जाएगा? 15 मिनट्स, विच इज नॉट ऑप्टिमल. इसका मतलब ये हुआ कि AMB को 0 कार, ANB को 4 कार, या फिर AMB को 4 कार और ANB को 0 कार, ये दोनों नहीं होना चाहिए क्योंकि ये ऑप्टिमल नहीं है. दिस इज नॉट ऑप्टिमल. ऑप्टिमल क्या होगा कि हाँ कुछ गाड़ियां एक रूट से जाने दो, कुछ गाड़ियां दूसरे रूट से जाने दो. सो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? चलो, वो पहला पॉसिबिलिटी हो सकता है कि AMB को आपने एक गाड़ी दी और ANB को आपने 3 गाड़ी दी. ये है पहला पॉसिबिलिटी. दूसरा पॉसिबिलिटी, AMB को 2 गाड़ी दी,
ए एंड बी को भी 2 गाड़ी दी, और तीसरा पॉसिबिलिटी ए एंड बी को 3 गाड़ी, ए एंड बी को 1 गाड़ी, और उस केस में हम टाइम गिनेंगे। चलिए पहला केस, ए एम बी पे एक ही गाड़ी है, सो लेट्स फाइंड आउट द टाइम। अगर एक ही गाड़ी ए एम बी पे जाएगी तो कितना टाइम लगेगा? 6 + 20 26। एक ही गाड़ी है ना, कोई एडिशनल कंजेशन नहीं है। 6 + 20 26, तो लिख देता हूं मैं। ए एम बी रूट पे 26 मिनट्स लगेगा। ए एन बी रूट पे 3 गाड़ियां हैं, 3 ए एन बी वाले रूट पे 3 गाड़ियां हैं, तो उसका टाइम गिनिए। चलिए इधर 3 कार्स ए एन बी रूट पे, तो सबसे पहले ये 20 नहीं, +1 तो ये 22 लगेगा टाइम, 20 और +1 22 ए एन बी रूट पे, बिकॉज तेरा 3 कार्स, और यहाँ पर कितना टाइम लगेगा? 6 + 3 + 3 12, कितना हो गया? 34। 22 + 12 34 मिनट्स लगेगा यहाँ पर तीनों गाड़ियों में, है ना। ये रूट के लिए 22, एन के लिए 22 और एनबी के लिए 12, टोटल कितना हो गया? 34। तो 34 मिनट्स लगेगा। अपने सोल्यूशन में डाल देते हैं यहाँ पर 34। इसका मतलब ये एक गाड़ी बहुत जल्दी पहुंच जाएगी और ये एक गाड़ी लेट पहुंचेगी। तो ये एक गाड़ी जो जल्दी पहुंच रही है उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो लेट पहुंच रहे हैं वो क्या सोचेंगे? चलो एक काम करता हूं, अगर मैं अपना ऑर्डर फॉलो ना करके किसी और रूट पे जाऊं, मतलब मैं इस रूट पे आ जाऊं, तो क्या मेरे लिए बात बनेगी? तो लेट्स ट्राई फॉर ए एम बी में 2 गाड़ी और ए एन बी में 2 गाड़ी, ए एन बी में 2 गाड़ी और ए एन बी में 2 गाड़ी। चलो 2 गाड़ियां भेजनी है, ट्राई करते हैं। ए एम बी में 2 गाड़ी, चलो ए एम में कितना टाइम लगेगा? ए एम, सो ए एम मैं यहाँ लिख देता हूँ एम बी, फिर ए एन और एन बी। चलो ए में 2 गाड़ी है तो 6 + 3 9, फिर एम बी में 2 गाड़ी है तो 20 + 0.9 20.9, राइट, 20.9। सिमिलरली ए एन में 2 गाड़ी है तो 21, और एन बी में 2 गाड़ी है, सो 6 + 3 9। इसका मतलब ए एम बी का पूरा टाइम आ गया 29.9 और ए एन बी का पूरा टाइम आ गया 30 मिनट्स। ए एम बी 29.9, ए एन बी 30 मिनट्स लिख देते हैं। ए एन बी 29.9 और ए एन बी 30 मिनट्स। ये हुआ 2 + 2 वाला हिसाब। 3 + 1, चलिए 3 + 1, 3 + 1, तो मैं यहां से फिर से इसको मिटा देता हूं। 3 + 1 मतलब हम ए एम बी में 3 गाड़ियां भेज रहे हैं, 3, सो 6 + 3 + 3 12, 20 + 0.9 + 0.9 21.8, सॉरी 3 गाड़ियां, 3 मैंने 2 गिन दिया, सॉरी 3 कार्स, 6 + 3 + 3 12, ये सही था। 20 + 0.9 + 0.9, ये भी सही था। 20.9 एंड फिर से 0.9 मतलब 21.8, सही था, सही था। ए एन में एक ही गाड़ी है तो 20 और इधर 6, इसका मतलब ये हो जाएगा 33.8 और ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 33.8 और ये हो जाएगा 26। चलिए लिख देते हैं। ओके, नाउ प्लीज ट्राई टू फाइंड द ऑप्टिमल सोल्यूशन। ऑप्टिमल सोल्यूशन मतलब क्या? जैसे कि अगर मैं ये सोल्यूशन देखूं, यहां पर एक ही गाड़ी ए एम बी में, यहां पर 3 गाड़ियां हैं, सो ऑब्वियसली ये 3 गाड़ी में से एक अगर इधर आ जाती है या 2 उधर चली जाती है तो ये टाइम कम हो जाएगा। चलो एक गाड़ी अगर इधर आ गई, यहां से ये ए एन बी वाली एक गाड़ी यहां आ गई इस तरफ, सो इनका टाइम 30 हो गया, इनका टाइम 29.9। सो यहाँ पर जो गाड़ी उसको क्या लेगा? अच्छा टाइम कम हो रहा है, तो एक और गाड़ी अगर यहाँ पे आ जाए तो इसका टाइम बढ़ जाएगा 33.8, ये चाहे कम हो जाएगा। सो दैट मीन्स 1-3 करते हो या 3-1 करते हो, दोनों में किसी एक का टाइम बढ़ जाता है। 2 + 2 यही एक ऑप्टिमल सोल्यूशन है, जहां पर हमें सबसे कम टाइम लगता है कलेक्टिवली, सबसे कम टाइम लगता है कलेक्टिवली, राइट। कलेक्टिवली मतलब क्या है कि अगर हमें यहां से यहां एक गाड़ी भेजनी हो तो ये टाइम थोड़ा बढ़ा और ये टाइम 4 से कम हो गया। सो माय ऑप्टिमल सोल्यूशन इज दिस। सो आंसर, हाउ मेनी कार्स वुड बी आस्क्ड टू टेक द रूट A and B, that is Akala Nanur Bakala road, by the police department? The answer is 2. प्लीज अंडरस्टैंड, टाइम का टोटल नहीं करना है, टाइम का टोटल वैसे नहीं करना है। आपको कैसे देखना है?
कि अगर एक गाड़ी यहाँ इस रूट पे आ जाती है, ये जो 3 है उसमें से एक गाड़ी इधर भेज देते हैं हम, तो टाइम बन जाता है 29.9 एंड 30। अगर एक और गाड़ी यहाँ पर आ गई तो इसका टाइम बढ़ जाता है 33.8 और ये हो जाता है 26, राइट। सो टाइम को आपको ये देखना है कि अगर मैं एक गाड़ी यहाँ भेज दूँ, तो ये जो 2+2 है, जो 2+2 है, इनमें से कोई भी गाड़ी अपना अगर ऑर्डर चेंज कर लेती है तो सामने वाले का टाइम बढ़ ही जाएगा। जैसे 2+2 में से अगर एक गाड़ी यहाँ चली गई तो ये टाइम बढ़ गया, अगर एक गाड़ी यहाँ आ गई तो ये टाइम बढ़ेगा। इसका मतलब दिस इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, राइट। आंसर इज 2। ट्रिकी क्वेश्चन है, काफी शांति से पीसफुल तरीके से सोचना है इसके लिए। यू नीड टू फोकस ऑन द क्वेश्चन, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस रूल जो पुलिस ने बोला है। क्या रूल है ये, फिर से एक बार। द पुलिस डिपार्टमेंट ऑर्डर्स ईच कार टू टेक अ पर्टिकुलर रूट इन सच अ मैनर दैट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी कार टू रिड्यूस इट्स ट्रैवल टाइम by not following the order while the other cars are following the order. What does the police department want? For example, 1+3 वाले सीन में क्या हो रहा है, लेट्स से ये 34 है, राइट, ये 34 है। अगर ये गाड़ी इधर आ जाती है सो ऑब्वियसली उसका टाइम कम हो जाता है। ऐसा पॉसिबल नहीं होना चाहिए। दैट इज वाई हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो 2+2 वाला डिस्ट्रीब्यूशन है ना, सिर्फ इसी पे फोकस करो, 2+2। अब देखो, अगर ये वाली गाड़ी, ये 30 वाली गाड़ी जो है, करेक्ट, ये गाड़ी जिनको 30 का टाइम लग रहा है, अगर ये गाड़ी अगर इधर आ जाती है, ये वाली गाड़ी इधर आ जाती है, तो उनका टाइम बढ़ जाता है 33.8, है ना, इनका टाइम बढ़ जाता है 33.8। या फॉर एग्जांपल अगर ये 29.9 वाली गाड़ी ये सामने चली जाती है तो उसका टाइम बन जाएगा 34। दैट मीन्स ये सिचुएशन ऑप्टिमल सिचुएशन है जहां पर किसी भी गाड़ी के लिए अपना टाइम रिड्यूस करना पॉसिबल नहीं है। दैट्स इट, राइट। पार्टी बदल के अगर दूसरे रूट पे चले जाएंगे तो अपना टाइम कम करना पॉसिबल नहीं है, राइट। अगर ये 29.9 वाली गाड़ी जो है सामने जाना चाहती है यहाँ पर, तो उसका टाइम 34 हो जाएगा, बढ़ गया, राइट, क्योंकि उसने रूल तोड़ा। अगर आप रूल तोड़ोगे तो आपको पनिशमेंट मिलना चाहिए, तो इसने टाइम अपना पार्टी चेंज किया, रूट टाइम बढ़ गया इसका। सिमिलरली अगर ये 30 वाली गाड़ी है, इसको अगर सामने जाना है तो ये 33.8 हो जाएगा, उसको भी पनिशमेंट मिला। रूल तोड़ने पर पनिशमेंट होना चाहिए, रिवॉर्ड नहीं। एंड दैट इज व्हाई 2+2 इज द अप्रोप्रिएट आंसर, राइट। आंसर इज 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत एक अच्छे लेवल का अंडरस्टैंडिंग बनता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर, है ना। तो दैट वाज क्वेश्चन 1। अब क्वेश्चन 2 पे आते हैं। If all the cars follow the police order, what is the difference in travel time between a car which takes the route A and B and a car that takes the route A and B? बस टाइम का डिफरेंस पूछ रहे हैं। दैट मीन्स ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 1 में क्या टाइम आया था, एक का टाइम था 29.9, दूसरे का टाइम था 30। सो द डिफरेंस is nothing but 30 minus 29.9. So difference is 0.1 minute. And that's why the answer is option B. 0.1 minute. है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन। एंड दैट इज व्हाई आई सेड दैट दिस इज काइंड ऑफ बोनस क्वेश्चन। ये एक बोनस क्वेश्चन है कि भाई क्वेश्चन 1 सॉल्व कर लिया, बहुत डिफिकल्ट था, अब ले लो बोनस क्वेश्चन। सो दैट मीन्स आपने क्वेश्चन 1 पे जो मेहनत की है ना, उसके आपको सिर्फ 3 मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, उसके आपको 6 मार्क्स मिल रहे हैं। 6 बिकॉज ये भी इंक्लूडेड है। ये बहुत ही चिंदी सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट अ सिंपल फॉलो अप क्वेश्चन, है ना। So that was question 2. आगे बढ़ते हैं question 3 की तरफ। Now this is a bigger one. This is a bigger one. A new one-way road is built from M to N. Each car now has 3 possible routes to travel from A to B. That is AMB, ANB, AMNB. On the road from M to N, one car takes 7 minutes and each additional car increases the travel time per car by 1 minute. Okay, so we have to incorporate this in the drawing. Okay, so let's try to go back to our, yes, let me get rid of the unimportant data for this question. Okay, now they are saying they have built a road from M to N. आप M to N ही जा सकते हो। आपको टाइम लगेगा 7 मिनट्स
एडिशनल +1, राइट? यही सीन है। Yeah. So M to N, one car takes 7 minutes and 7 minutes each. Each additional increases the travel time by 1 minute. हाँ सही है. Okay. So यहाँ तक we are fine. Assume that any car taking the AMNB route travels the AM portion at the same time as other cars taking the AMB portion. मतलब AMB route वाली. So फिगर में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. AM रूट क्रॉस करने वाली गाड़ियां जो हैं वो एक साथ ही AM रूट क्रॉस करेंगी, चाहे वो AM के बाद MB जाए या MN जाए, करेक्ट? सेम टाइम पे AM का रूट क्रॉस करेंगी, चाहे वो उसके बाद MB जाए या MN जाए। सिमिलरली AN वाला रूट तो एक ही वाली गाड़ी है, NB रूट क्रॉस जो करेंगी, NB रूट क्रॉस करने वाली गाड़ी भी सेम टाइम पे आएंगी, चाहे वो MN से आ रही हो या AN से आ रही हो, राइट? ये चीज समझना जरूरी है। You have to understand this, right? So I think यहाँ तक चीजें क्लियर है, right? So now there are 3 routes. पहला रूट है भैया कि आप A से M जाओ, M से B जाओ। दूसरा रूट है कि भैया आप A से M, M से N जाओ और फिर B जाओ। और तीसरा रूट है कि भाई पहले आप A से N जाओ, N से B जाओ, राइट? AMB, AMNB एंड ANB। ध्यान रहे N से M नहीं जा सकते, सिर्फ M to N जा सकते। ये क्वेश्चन ने दिया हुआ है 3 पॉसिबल रूट्स। देखिए ये क्वेश्चन ने बोला हुआ है, आई रिमेंबर द वर्ड, 3 पॉसिबल रूट्स। ओके, चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी कार्स वुड द पुलिस डिपार्टमेंट ऑर्डर टू टेक द AMNB रूट सो दैट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी कार to reduce its travel time by not following the order while the other car follow the order? वही सेम चीज है, किसी के भी लिए रूल तोड़ना रिवॉर्डिंग नहीं होना चाहिए, पनिशमेंट होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें ये चेक करना है कि लेट्स से AMB में कितनी गाड़ी, AMNB में कितनी गाड़ी और ANB में कितनी गाड़ी, और सबका टाइम नोट करना है। ये AMB वालों का टाइम, ये AMNB वालों का टाइम और ये ANB वालों का टाइम, राइट? ओके, सवाल ये है कि कितने केसेस पॉसिबल होंगे, सवाल ये है कि केसेस कितने पॉसिबल होंगे। नंबर 1 थी, पहले क्वेश्चन से हमें याद था कि इट डज नॉट मेक सेंस, ध्यान से सुनिएगा, इट डज नॉट मेक सेंस टू नॉट यूज अ रूट। किसी भी एक रूट को यूज ही ना करना सेंसलेस बात है। इसका मतलब आप कम से कम एक गाड़ी हर एक रूट में तो दोगे ही दोगे, एक गाड़ी तो हर एक रूट में देनी ही देनी है, और बची एक गाड़ी, बिकॉज 4 गाड़ियां हैं। इसका मतलब पहला केस हो गया, यहाँ 2 गाड़ी, इस रूट में 2 गाड़ी, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, ये होगा अपना पहला केस। दूसरा केस, यहाँ पर 1 गाड़ी, यहाँ पर 2 गाड़ी, यहाँ पर 1 गाड़ी, और तीसरा लास्ट, यहाँ पर 1 गाड़ी, यहाँ पर 1 गाड़ी और ANB में 2 गाड़ी। ये अपना तीसरा केस। सो अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको। आप में से जिन लोगों से ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ था, विच आई थिंक काफी ज्यादा लोगों से ये सॉल्व नहीं हुआ होगा, आपको क्वेश्चन 1 याद है, आपको मैंने ये टेबल दे दिया है, आप यहीं के यहीं वीडियो पॉज कीजिए, मैं स्क्रीन से बाहर निकल जाता हूँ, पॉज द वीडियो और ये टेबल को भरने की कोशिश कीजिए। बस इतना ही चाहता हूं मैं। अगर आपसे एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, इफ यू थिंक दैट दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट फॉर यू, आई जस्ट वांट यू टू कॉपी दिस टेबल और ये मिसिंग वैल्यूज पता कीजिए, बस दैट्स इट। पॉज द वीडियो फॉर अबाउट 3-4 मिनट्स, ये टेबल भर दीजिए, और अगर भर दिया हो देन रिज्यूम। ऑलराइट, सो आई होप आप में से बहुत सारे लोगों ने टेबल को भर दिया होगा एंड उसके बेसिस पे आंसर भी शायद ढूंढने की कोशिश की होगी। आई जस्ट वांट टू प्रूव वन थिंग, दैट एक बार अगर स्ट्रक्चर पता चल जाए तो लॉजिक भी पता चल जाता है, राइट? तो चलिए ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। हमें AMB में 2 गाड़ियां चाहिए, AMNB में 1, ANB में 1, AMB में 2 गाड़ी, और याद रखना AM रूट पे भी 1 गाड़ी चल रही है, ये ध्यान रहे, AM रूट पे भी 1 गाड़ी चल रही है। इसका मतलब AM रूट पे 3 गाड़ियां हैं, AM रूट पे 3 गाड़ियां हैं, AM में ये 2 और ये 1, AM पे 3 गाड़ियां हैं, MB में 2 गाड़ियां हैं, ओके? AM में 3 गाड़ी। तो चलो वापस चलते हैं हमारे फिगर के पास। ओके, हम बोल रहे हैं कि इधर 2 गाड़ी, इधर 1 गाड़ी, इधर 1 गाड़ी,
तो जो पहले आसान है वो खत्म करते हैं। ए एन बी, ए एन बी में चलो ए एन सोचो पहले, ए एन, ए एन में तो सिर्फ एक ही गाड़ी है 20 मिनट्स। एन बी में दो गाड़ियां, देखो ये वाली गाड़ी भी है और ये वाली गाड़ी भी है, सो एन बी में दो गाड़ी, सो एन बी में दो गाड़ियां, 6 + 3 9, सो ये हो गया 29। ओके, एन बी में दो गाड़ी थी तो ये टाइम था 9। ओके, अब आते हैं एम एन, एम एन पे एक ही गाड़ी है 7, और ए एम पे ये यहाँ की दो गाड़ी और यहाँ की एक, ए एम पे तीन गाड़ी है, तो 6 + 3 + 3 12, इसका मतलब यहाँ पे 12, और फिर एम बी में एक ही गाड़ी है, मतलब कितना 20। सबका टाइम लिख दीजिए, ये कितना हो गया 32, 12 + 22, ये कितना हो गया 9 + 7 16, 16 + 12 28, है ना, 20 + 29 32, 28 29, 32 28 29। फिर से एक बार याद कर लीजिए, एएम रूट की गाड़ियां जो जितनी भी हैं सब साथ में चलेंगी, एएम रूट की गाड़ियां। सिमिलरली एनबी रूट में जितनी गाड़ियां हैं सब साथ में चलेंगी, दैट इज वाई हमने यहाँ पर दो गाड़ी ली थी। सो 32 28 29 ये लिख देते हैं, 32 28 29, ओके, 32 28 29, ये वो पहला चीज। अब आते हैं वन गाड़ी एएम, टू गाड़ियां एएम एनबी, एक गाड़ी एएम एनबी। चलिए 1 2 1, सॉरी पीछे जाना है, या लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए से एम से बी, ए से एम से एन से बी, ए से एन से बी, यहाँ पर वन गाड़ी, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1। चलो पहले मैं देखूं एएम, सो एएम में ये वाली एक गाड़ी भी चल रही है और ये वाली दो गाड़ियां भी चल रही है। सो अगेन एएम रूट पे तीन गाड़ियां हैं, 6 + 3 + 3 12। ओके, एमबी में एक ही गाड़ी चल रही है, एमबी में कितना टाइम है 20, सो ये मिल गया 32। ओके, अब आते हैं एमएन रूट पे कितनी गाड़ी, एक ही गाड़ी है, तो मतलब 7। अब आते हैं एनबी में ये दो गाड़ी और ये एक गाड़ी, तीन गाड़ियां हैं एनबी पे, तीन, ये दो गाड़ी और ये एक गाड़ी, देखिए, सो 3 कार्स, एनबी 3 कार्स, 6 + 3 + 3 12, यहाँ पर भी 12 है ना, 12। और एएन में एक ही गाड़ी है, एएन में एक ही गाड़ी है विच इज 20, सो 32, यहाँ पर भी 32। ओके, एमएन में एक ही गाड़ी है ना, एमएन में, ओ सॉरी दो गाड़ी है, तो यहाँ पर 8 आएगा, माय बैड 8 आएगा, सो 12 + 12 + 8 दैट इज 32 अगेन, राइट। सो तीनों गाड़ियों में 32 आया है टाइम, मैं लिख देता हूँ 32 32 32। ओके, नेक्स्ट क्या है, 1 + 1 + 2, 1 + 1 + 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 1 + 1 + 2, सॉरी, या ओके, फर्स्ट ए से एम, एम से बी 1 कार, सेकंड ए से एम से एन से बी अगेन 1 कार, थर्ड ए से एन, एन से बी 2 कार्स। ओके, चलो पहले एएम रूट, एएम पे यहाँ की एक गाड़ी और यहाँ की एक गाड़ी, मतलब दो गाड़ियाँ, 6 + 3 9 मिनट्स, ये 9 और ये 9। एमबी पे एक ही गाड़ी है, एक गाड़ी मतलब 12, तो ये 12, मतलब ये आ गया 9 + 12 है ना, सॉरी 20 माय बैड, या 20, सो 20 + 9 29। एमएन पे एक ही गाड़ी है 7, एमएन पे एक ही गाड़ी और कोई गाड़ी है नहीं। एनबी पे ये एक गाड़ी और यहाँ की दो गाड़ी, तीन गाड़ियां एनबी पे, तीन, सो एनबी में तीन गाड़ियां, 6 + 3 + 3 12, सो ये 12 और ये भी 12, सो 12 + 7 19 + 9 28। अब आएंगे एएन पे एक ही गाड़ी, सॉरी दो ही गाड़ियां हैं एएन पे और एक्स्ट्रा कोई गाड़ी नहीं, सो एएन पे दो गाड़ी 20 और 1 21।
ये 20 प्लस एक एडिशनल गाड़ी का 1, 21, दो गाड़ियों का 21 एंड 12, 21 और 12 कितना हो जाएगा 30, 33। सो 29, 28, 33, 29, 28, 33 लिख देते हैं। 29, 28, 33। ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग। अब याद कीजिए वो रूल, पुलिस डिपार्टमेंट की इच्छा क्या है? रूल तोड़ने पर रिवॉर्ड नहीं मिलना चाहिए, पनिशमेंट मिलना चाहिए। रूल तोड़ने पर रिवॉर्ड नहीं मिलना चाहिए, पनिशमेंट मिलना चाहिए। थिंक अबाउट दिस सिचुएशन। मान लो ये आंसर है 211, मान लो ये आंसर है 211, ओके। रूल तोड़ने पर रिवॉर्ड नहीं मिलना चाहिए। रूल कौन तोड़ेगा? सो मान लो अगर मैं यहां से यहां आता हूं तो मैं ये इसकी एक एक्स्ट्रा गाड़ी यहां जा रही है, देखिए ये एक एक्स्ट्रा गाड़ी यहां जा रही है। सो 32 से 32 मतलब आपका टाइम रिड्यूस नहीं हो रहा है, सेम का सेम रह रहा है, राइट? आपका टाइम रिड्यूस नहीं हो रहा है, सेम का सेम रह रहा है। बट अगर यही गाड़ी इस तरफ आ गई, थर्ड रूट में आ गई, तो देखिए अगर यही गाड़ी थर्ड रूट में आ गई तो यहाँ पर, सो ये गाड़ी इधर आ गई तो ये 32 का 33 हो रहा है, तो ये तो पनिशमेंट मिल गया, टाइम बढ़ गया, मतलब ये आंसर नहीं है, राइट? 211 इज नॉट द आंसर, 211 इज नॉट द आंसर। ये 32 का 32, 32 का 32 हुआ, ये 32 का 33 बन गया, राइट? बाकियों का टाइम कम हो गया। ओके, दूसरा सोचते हैं। मान लो ये 1 + 2 + 1, ये अगर आंसर है 1 + 2 + 1। चलिए अगर ये गाड़ी यहाँ की एक गाड़ी अपना रूल चेंज करके यहाँ आ जाती है, तो ये 32 का 32 मतलब रिवॉर्ड तो नहीं मिला, रिवॉर्ड तो नहीं मिला फॉर श्योर, राइट? ये 32 का 32। और मान लो ये गाड़ी अगर यहाँ से यहाँ आ जाती है तो ये 32 का 33, तो यहाँ पर भी आपको क्या मिल रहा है? रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। सो 1 + 2 + 1, 32, 32 एंड 32। एंड अगर आप रूल तोड़ रहे हो, अगर आप रूल तोड़ रहे हो, सो वंस अगेन देयर इज नो रिवॉर्ड। ये 32 का 32 है यहाँ पर, अगर ये गाड़ी यहाँ आ जाती है तो, और ये 32 यहाँ से, तो ये 32 का 33, अगेन इट इज अ पनिशमेंट, इट इज अ पनिशमेंट। दैट मीन्स इफ यू थिंक अबाउट इट, ये 32, 32 और 32 है यहाँ पर, 32, 32, 32, 1 + 2 + 1 गाड़ियाँ हैं, करेक्ट? इनमें से अगर कोई भी गाड़ी रूल तोड़ती है, इनमें से अगर कोई भी गाड़ी रूल तोड़ती है तो किसी को रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, राइट? किसी को रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट वाला केस अज्यूम करूँ, 2 + 1 + 1, फर्स्ट वाला केस अज्यूम करूँ, ठीक है? तो ये जो 32 वाली कार है यहाँ पर, जिनको 32 मिनट्स लग रहा है AMB रूट के ऊपर, करेक्ट? जिनको AMB रूट के ऊपर 32 मिनट्स लग रहा है, यही 32 अगर ये एक गाड़ी यहाँ शिफ्ट हो जाती है तो ये 28 का फिर 32 हो जाता है फिर से, सो देयर इज नो रिवॉर्ड, करेक्ट? सिमिलरली अगर ये एक गाड़ी यहाँ से यहाँ आ जाती है, यहाँ से लास्ट वाले में आ जाती है, सो ये 32 का ये उधर इधर 33 हो जाता है। जो 29 चल रहे थे 29 मिनट्स, ये 33 मिनट्स हो जाते हैं। सो यहाँ पर भी अपने पास रिवॉर्ड नहीं है, राइट? चलो क्वेश्चन क्या पूछा हम लोगों ने? हाउ मेनी कार्स वुड द पुलिस डिपार्टमेंट ऑर्डर टू टेक द AMNB रूट, AMNB route, so that it is not possible for any car to reduce its travel time by not following the order, while the other cars follow the order. Correct? AMNB route पे कितनी गाड़ियां चलनी चाहिए so that किसी के लिए अपना टाइम रिड्यूस कर पाना पॉसिबल नहीं है। So if I think of 32, 32, 32, अगर AMNB में दो गाड़ियां चल रही हैं, अगर ये दो गाड़ी में से एक भी गाड़ी इधर आ जाती है तो उसका टाइम रिड्यूस नहीं हो रहा है, और अगर एक भी गाड़ी यहाँ आ जाती है तो भी उसका टाइम रिड्यूस नहीं हो रहा है, राइट? बट अगर मैं AMNB पे एक गाड़ी रखता हूँ, सो लास्ट केस, अगर AMNB पे एक कार है तो चलो एक एक्स्ट्रा कार यहाँ पर है 33, इनको भी 33 मिनट्स लग रहा है। अगर ये दो में से एक भी गाड़ी इस तरफ या इस तरफ आ जाती है, मतलब ये केस या ये केस बन जाता है, तो ये 33, 32 और 32 दोनों ही केस में अपना टाइम रिड्यूस कर पाती है। इसका मतलब क्या हुआ? चोरी करना आसान पॉसिबल नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पर पॉसिबल है। ये 33 वाली कार 32 में आ सकती है, ये इधर भी 32 में आ सकती है, विच इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब 1 गाड़ी इधर अलाउ नहीं करनी चाहिए। कितनी गाड़ियां अलाउ करनी चाहिए? 2 गाड़ी। 1 नहीं अलाउ कर सकते, मतलब ये भी अलाउ नहीं कर पाएंगे हम,
बिकॉज वंस अगेन दो केसेस पॉसिबल है वन वाले, इसका मतलब हमें कितनी कार पॉसिबल अलाउ करनी चाहिए एएमएन के रूट पे 2 कार्स। कैसे कि अगर ये 32 वाली गाड़ी है जिसको अभी फिलहाल 32 मिनट्स लग रहा है, अगर ये इस तरफ आती है तो भी नो रिडक्शन, और अगर ये इस तरफ आती है तो भी नो रिडक्शन, दोनों तरफ पनिशमेंट है। लेकिन ये जो लास्ट केस है 1 + 1 + 2 वाला, उसमें जो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा गाड़ी है, अगर ये अपना रूट चेंज करके इधर आती है तो यहाँ पर भी रिवॉर्ड 1 मिनट कम हो गया और यहाँ पर भी रिवॉर्ड 1 मिनट कम हो गया। इसका मतलब हम 1 अलाउ नहीं कर सकते, हमें अलाउ करना चाहिए 2 कार्स। सो आंसर इज 2। प्लीज अंडरस्टैंड, पहले वाले केस में भी पॉसिबल, पहले वाले केस में भी कोई रिवॉर्ड नहीं है, बट देन हमने देखा कि 1 वाली ये वाली पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इस केस की वजह से ये वाला केस भी हम अलाउ नहीं कर सकते। हमें पक्का एएमएनबी में 2 गाड़ियां ही जाने दो, तो कोई आपको टेंशन नहीं होगा, आप कोई अपना टाइम कम नहीं कर पाएगा। सो आंसर इज 2। एंड वंस अगेन दिस इज डिफिकल्ट, मॉडरेट और डिफिकल्ट में डिफिकल्ट की साइड ही है ये, राइट। इस क्वेश्चन को आप 4-5 मिनट में सॉल्व कर पाएंगे। सो अगर इसको एग्जाम में करना है, सो इट हैज टू बी अ टफ कॉल। अगर आपको पूरा क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग आ चुका है, अगर आप इस क्वेश्चन को कमिटमेंट दे चुके हो एंड यू थिंक यू आर क्लोजर टू द आंसर, देन ओनली अटेम्प्ट दिस वन, राइट। चलिए एक क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन 3 इज डन। क्वेश्चन 4, if all the cars follow the police order, what is the minimum travel time from A to B? Assume that police department would never order all the cars to take the same route. मिनिमम टाइम हमारा आंसर क्या था? 32, सबको ही 32 मिनट्स ही लग रहा है, सो आवर आंसर हैज टू बी 32 मिनट्स, राइट। 32 मिनट्स, राइट। काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन, राइट, दिस इज क्वाइट डिफिकल्ट। वंस अगेन there were 2 difficult questions with 2 bonus questions, 2 difficult questions with 2 bonus questions, right? So that is it. Let's go to set number 3.